प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं नोट मेकिंग, जो क्लास 11th के सिलेबस में है और 8 मार्क्स के लिए आता है। तो देखिए, नोट मेकिंग बहुत ही आसान होता है। नोट मेकिंग क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और आपको किस प्रकार से बनाना है, ये सारा मैंने पार्ट नंबर 1 में यू कैन से कि वहां पे मैंने समझाया हुआ है कि व्हाई वी यूज नोट मेकिंग, भविष्य में क्यों जरूरत पड़ेगी और किस प्रकार से बनाना चाहिए, इसके मतलब प्रोसेस क्या है बनाने का, वो पार्ट नंबर 1 में मैं समझा चुका हूं। आज हम लोग एक्चुअल में नोट मेकिंग बनाना कैसा है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन पेपर 2020 में आया हुआ है, वहीं से ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, एंड देन वी लर्न हाउ टू मेक द नोट मेकिंग। सबसे पहले पैराग्राफ देख लीजिए कितना बड़ा है। ये पैराग्राफ 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको, 5 पैराज में। चलिए तो पढ़ लेते हैं सबसे पहले। हाउ डज टेलीविजन अफेक्ट आवर लाइव्स? It can be very helpful to people who carefully choose the shows that they watch. Television can increase our knowledge of the outside world. There are high quality programs that help us understand many fields of study, science, medicine, the different arts and so on. Moreover, television benefits very old people who cannot leave the house, as well as patients in hospitals. It also offers non-native speakers an advantage of daily informal language practice. They can increase their vocabulary and practice listening. On the other hand, there are several serious disadvantages of television. तो प्यारे बच्चों, हमने एक पैरा पढ़ा। अब इस एक पैरा पढ़ने के बाद हमारे मन में ये विचार आ जाना चाहिए कि जो मेरा पहला पैरा होगा, जो मैं नोट मेकिंग बनाऊंगा, तो किस प्रकार से पहले पैरे को क्या हेडिंग दूंगा। तो इस हेडिंग में आप ये लिख सकते हैं, आ, हम यहाँ मेनली क्या बनाया गया है, बेनिफिट्स के बारे में बनाया हुआ है। तो विल राइट द बेनिफिट्स। पहले पैरे को हम किससे डिसाइड करेंगे, बेनिफिट्स के पॉइंट्स हम उसमें लिखने वाले हैं। On the other hand, there are several serious disadvantages of television. Of course, it provides us a pleasant way to relax and spend our free time, but in some countries, people watch television for an average of 6 hours or more a day. Many children stare at the television screens for more hours a day than they spend on anything else, including studying and sleeping. It's clear that TV has a powerful influence on their lives and that it influences it often negative. तो यहाँ पे जो इस पैरा में डिस्कस किया गया है, दैट इज डिसएडवांटेजेस, यू कैन से। तो इस पैरा में हम क्या गिनवाएंगे, डिसएडवांटेजेस। आगे बात समझ में। तीसरा पैरा देखिए, recent studies show that after only 30 seconds of television view, a person's brain relaxes the same way that it does just before the person fall asleep. Another effect of television on the human brain is that it seems to cause poor concentration. Children who view a television can often concentrate on a subject for only 15 or 20 minutes. They can pay attention only for the amount of time between commercials. ठीक है, तो इस तीसरे पैरे में आपको क्या बताया गया हुआ, तीसरे पैरे में यू कैन से इम्पैक्ट बताया हुआ है, किस चीज से प्रभावित क्या हो रहे हैं, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स। ठीक है। Another disadvantage is that television often causes people to become dissatisfied their own lives. Real life does not seem so exciting, so these people, to many people, television becomes more real than reality of their own life seems boring. Also, many people get upset or depressed when they can't solve problems in real life as quickly as television actors seems to. तो मतलब यहाँ पे तो भाई सब ख्याली पुलिंदा होता है, मीन्स सारी रील की बातें होती है यहाँ पे, और इस तरीके से बातें बताई गई है यहाँ पे। तो जो चीजें आप यहाँ पे लिखने वाले हैं, इसको हम पॉइंट नंबर 3 में, या हम पॉइंट नंबर 4 भी बना सकते हैं। रील वर्सेस रियल आप कर सकते हैं, रील एंड रियल लाइफ। ठीक है, रियल एंड रियल लाइफ। एंड फिफ्थ में क्या है, बिफोर अ चाइल्ड इज of 14 years old, he or she views 11,000 models on television.
he or she begins to believe that there is nothing strange about fights, killings, and other kinds of violence. Many studies show that people become more violent after viewing certain programs. They may even do the things that they see in a violent show. तो टीवी का रियल लाइफ में क्या हमारे ऊपर, तो हम लिख सकते हैं रियल रियल लाइफ, जो टीवी का रियल लाइफ इफेक्ट ऑफ टेलीविजन ऑन रियल लाइफ, इस तरीके से करके हम अपने पॉइंट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट कर देते हैं पॉइंट्स बनाना। बात समझ में आ गई आपको, आइडिया लग गया कि क्या करना है। नाउ अब आ जाइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे, लिखते हैं सबसे पहले क्या था भाई, सबसे पहले थे बेनिफिट्स। तो आप यहाँ पे देखिए इनको कैसे नोट मेकिंग जब आपको बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट, पहला पॉइंट लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे बेनिफिट्स। क्या लिखेंगे? बेनिफिट्स, ठीक है। ऑल्दो आई एम यूजिंग अ पेन टैब, तो राइटिंग का ध्यान नहीं रखना है आपको, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि मैं सिखा क्या रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने लिखा बेनिफिट्स, उसके बाद दिस इज हेडिंग। आप यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे कि on the basis of your reading above passage make a notes using heading and subheadings, use recognizable abbreviation minimum for and a form it considers suitable, format you consider suitably a subtype suitable title to it। इसको एक टाइटल देना है, तो we have written the title that advantages and disadvantages of watching television। तो सबसे पहले हमने बेनिफिट लिखा और मैंने इसको कर दिया अंडरलाइन। देखो भाई, नोट मेकिंग इज ऑल अबाउट हाउ ब्यूटीफुली आप कितने बढ़िया से चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, शॉर्ट और सटीक। तो सबसे पहले मैंने लिखा बेनिफिट, और फिर देखिए मैं क्या नीचे बनाने वाला हूँ, सब हेडिंग्स बनाऊंगा। तो सब हेडिंग्स में ये वन है मेरा, अब वन को मैंने अंडरलाइन कर दिया, एंड देन आफ्टर मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1.1, फिर अगला लिखूंगा 1.2, फिर लिखूंगा 1.3, फिर क्या लिखूंगा 1.4। इस तरीके से करके मैं इसको आगे लिख सकता हूँ। और आई कैन यूज, यहाँ पे मैं स्टार लगा देता और फिर लिख देता पहला स्टार और फिर लिख देता 1 2 3 4, और आई कैन यूज फर्स्ट रोमन काउंटिंग वाला 3, एंड इस तरीके से करके मैं लिख सकता हूं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन मी, मैं कैसे करता हूं वो मेरे ऊपर निर्धारित करता है, और यही पैटर्न मुझे रेस्ट ऑफ दी पॉइंट्स में भी फॉलो करना है। तो मैं पहले लिखता हूं बेनिफिट्स, मैंने लिख दिया कि भाई पहला पॉइंट मेरा क्या है, बेनिफिट, और फिर मैं ऐसे करके मान लीजिए मैं स्टार बना के कर देता हूं, मैंने स्टार बनाया, और बेनिफिट्स के नीचे मैं क्या लिखूंगा, बेनिफिट्स में मैंने देखा कि सबसे पहले क्या है, टेलीविजन वेरी हेल्पफुल टू केयरफुली चूज, टेलीविजन इंक्रीजेज नॉलेज आउटसाइड द वर्ल्ड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप पहला पॉइंट आपका क्या था, आप लिखेंगे इंक्रीजेज नॉलेज, तो INCR लिख के यहाँ पे डॉट लगाइए, नॉलेज KNOWL, फिर यहाँ पे डॉट लगा दीजिए। ये हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग एब्रिविएशन, हम बाद में लिख देंगे इंक्रीजेज नॉलेज। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसके बारे में नॉलेज बढ़ाता है, फिर लिखेंगे इंक्रीजिंग नॉलेज आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड, इंक्रीजिंग नॉलेज आउटसाइड वर्ल्ड। यहाँ पे हमें जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज एम आर, इनका इस्तेमाल नहीं करना होता है, बिल्कुल भी नहीं करना होता है। तो आपने पहला पॉइंट लिख दिया कि इंक्रीजेस नॉलेज आउटसाइड वर्ल्ड, फिर लिखेंगे नॉलेज साइंस, यहाँ पे लिख देंगे किसके बारे में, साइंस। और क्या था भाई, साइंस को पूरा ना लिख के बस आप ये लिख सकते हैं SCIE, और यहाँ पे क्या लगा दीजिए, डॉट। एब्रिविएशन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे बना रहे हैं, ठीक है, साइंस। इसके बाद क्या है, हमारा पैरा कहा गया, ये रहा। साइंस के बारे में क्या है, टेलीविजन कैन इंक्रीज नॉलेज आउटसाइड द वर्ल्ड, और उसके बाद क्या क्या, साइंस, मेडिसिन एंड डिफरेंट। आप लिखेंगे फिर किसके बारे में नॉलेज आपकी बढ़ा रहा है, ये साइंस के बारे में बढ़ा रहा है, मेडिसिन के बारे में मेडिसिन, फिर और किसके बारे में बढ़ा रहा है, स्टडी के बारे में बढ़ा रहा है, ये पॉइंट हो गया। फिर अगला स्टार मार्क आपने कर दिया, अगले स्टार मार्क में आप फिर लिखेंगे, अगले स्टार मार्क करने के बाद आप फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए डिफरेंट आर्ट्स एंड सो ऑन, तो इसी में ऐड कर दीजिए आर्ट्स, साइंस इंक्रीजेज नॉलेज अबाउट साइंस, आर्ट्स, एंड यहाँ पे क्या कर देंगे आप, ETC। उसके बाद फिर अगला क्या आएगा आपका, अगला क्या आपको करना है, आगे आप लिखेंगे फिर मोर ओवर टेलीविजन बेनिफिट्स वेरी ओल्ड पीपल हु कांट लिव वेल एंड पेशेंट्स इन हॉस्पिटल। फिर आप लिखेंगे बेनिफिशियल फॉर, क्या लिखेंगे, BEN, और यहाँ पे लिख देंगे F कर देंगे, बेनिफिशियल फॉर पेशेंट्स
PATIENTS पूरा लिख दिए, या पेशेंट्स, ओल्ड पीपल। ठीक है, अगला पॉइंट आप क्या लिखने वाले हैं, देखिए अगला पॉइंट क्या लिखिएगा। फिर अगला पॉइंट आप लिख लीजिए, और नॉन नेटिव स्पीकर दे इंक्रीज वोकेबलरी। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, इस पॉइंट को लिख दीजिए, इंक्रीज INCR करके लैंग्वेज, इंक्रीज लैंग्वेज एंड वोकैब, VOCAB और फुल स्टॉप। और आप यहीं पे एक डब्बा बना दीजिए, और इस डब्बे में आप यहाँ पे लिख दीजिए एब्रीविएशंस, और यहाँ पे लिख दीजिए एब्रीविएशंस आपने क्या इस्तेमाल किया, और यहाँ पे एक एब्रीविएशन का बना दीजिए और एक वर्ड का बना दीजिए। आपने फॉर एग्जांपल आपने ये यूज किया INCR, आपने क्या यूज किया INCR, और उसका मतलब क्या होता है, वर्ड पूरा क्या बन गया आपका, इंक्रीमेंट। आगे बात समझ में, चाहे इंक्रीज जो भी आपने यूज किया है। फिर आपने लिखा KNOWL, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉलेज, क्या लिख देंगे, नॉलेज, और पूरा लिखेंगे इसको। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्लियर, यस। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 2 पे। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है, दूसरा पॉइंट किस चीज के बारे में बताया हुआ है। दूसरा पॉइंट जब आप पढ़ेंगे तो ये मेनली इसने फोकस किस पे किया हुआ है, इट हैज फोकस्ड ऑन डिसएडवांटेजेस। किसके ऊपर फोकस किया हुआ है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो आप जब दूसरा पॉइंट बनाएंगे तो आप किस तरीके से बनाएंगे, हमने पहला पॉइंट बनाया बेनिफिट्स, अब आ गया मेरा दूसरा पॉइंट, और मैं दूसरा पॉइंट फिर ऐसे ही स्टार मार्क करके यहाँ पे लिखूंगा डिसएडवांटेज, क्या लिखूंगा, डिसएडवांटेजेस अंडरलाइन कर दूंगा, और फिर से मैं स्टार मार्क करूंगा, और स्टार मार्क करने में मेरा पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ .1 और ये .2, और फिर इनके नीचे स्टार मार्क कर रहा हूँ। अब दूसरे पॉइंट में क्या डिसएडवांटेज है जरा पढ़ लेते हैं। Of course, it provides us pleasant way to relax and spend our free time. But in some countries, people watch television for an disadvantage में लिखिए सबसे पहले people watch more than 6 hours। यहाँ पे लिखिए आप इसको छोटा लिख दीजिए, people watch TV more than 6 HRS, फुल स्टॉप। दूसरा और क्या डिसएडवांटेज है भाई, और डिसएडवांटेज है स्टूडेंट्स, STUD करके, और यहाँ पे S लगा देंगे, स्टूडेंट्स स्टेयर एट टीवी स्क्रीन। दूसरा पॉइंट था ना भाई कि स्टूडेंट ज्यादा करके टीवी स्क्रीन पे स्टेयर करते रहते हैं, मोर देन 6, मैनी चिल्ड्रन कीप ऑन स्टेयरिंग एट स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम एट टीवी स्क्रीन। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट स्टेयर एट टीवी स्क्रीन, स्टेयर मीन्स होता है घूरना, स्टेयर एट टीवी स्क्रीन। आगे बात सुनिए, और फिर इसी तरीके से करके आप तीसरा पॉइंट बना देंगे। समझ में आ रही है बात। और फिर आप क्या लिख देंगे, एब्रीविएशन यूज्ड। और क्या, जैसे इसमें और क्या है सकता है, आप तीसरे पॉइंट में और क्या लिख सकते हैं, टीवी हैज अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन देयर लाइफ एंड नेगेटिव। इसमें फिर आप लिखेंगे नेगेटिव पावरफुल इन्फ्लुएंस, पावरफुल INF करके L लगा दीजिए, पावरफुल इन्फ्लुएंस एंड नेगेटिव, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप, इफेक्ट नेगेटिव EFFECT, और फिर यहाँ पे एक जगह लिखेंगे आप एब्रीविएशंस और एक जगह वर्ड्स। तो फॉर एग्जांपल मैंने PPL लिखा, तो छोटे लेटर में मैंने PPL को क्या लिखा है, पीपल, क्या लिखा है, पीपल। और फिर मैंने और क्या लिखा है, स्टूडेंट्स, STUD, और यहाँ पे L लिख दिया मैंने, और यहाँ पे लिख दिया, फिर क्या लिखूंगा, स्टूडेंट्स। फिर मैंने पावरफुल नेगेटिव NEG और 8 करके, फिर या आप ऐसे भी लिख सकते हैं नेगेटिव, ठीक है ना, मतलब जिस तरीके से लिखना है। फिर अगेन मेक पॉइंट नंबर 3, और इस तरीके से करके उसको हेड अंडरलाइन कर देंगे, एंड देन इसको फिर से कर देंगे आप। तो कहने का मतलब ये है कि हर पैरा का आप एक एक पॉइंट बना लीजिए, मेन उसमें देखिए क्या कहता है, एंड देन उसको डिस्क्राइब कर दीजिए। जैसे लास्ट का मैं बता देता हूँ, ये बीच का आप बना लीजिएगा, देखिए मेथड बता दिया मैंने। लास्ट का है, आप लिख लीजिए, लास्ट में है वोलेंस, आप वोलेंस,
तो लास्ट जो पैरा आप बनाएंगे तो आप यहाँ पे लिख देंगे भाई तीसरा भी बना लिया आपने, चौथा भी बना लिया, फोर्थ और लास्ट पैरा आप बना लीजिएगा किसका, वॉयलेंस, वॉयलेंस ऑन टीवी शो। देखिए जब हम ये लिखेंगे ना, ये क्या है, ये हेडलाइन उस पैरे का, तो इसको कोशिश कीजिए कि आप शॉर्ट लिखें, हेडिंग देके लिखें, लेकिन ये पूरा होना चाहिए। उसके जब सब पार्ट्स लिखेंगे, जैसे फोर्थ है तो 4.1, 4.2, या अभी मैंने बताया स्टार मार्क करेंगे, तो इस तरीके से स्टार मार्क कर लीजिएगा। वॉयलेंस ऑन टीवी शो क्या है, तो आप लिखेंगे चिल्ड्रन, CHLD कर दीजिएगा, चिल्ड्रन बिकम वॉयलेंट, चिल्ड्रन बिकम वॉयलेंट। और क्या है, और क्या देखते हैं वो, वॉयलेंट बन जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं वो, बिलीव दैट स्ट्रेंज फाइट किलिंग्स वायलेंस मेनी स्टूडेंट्स पीपल बिकम मोर वॉयलेंट व्हेन दे सी वॉयलेंट शो। तो एक तो वॉयलेंट बन गए, दूसरा क्या है, किलिंग सीम्स नॉर्मल, बच्चों को जो किलिंग है, किलिंग एक्टिविटी जो होती है, किलिंग सीम्स नॉर्मल, कि भाई इनके लिए किलिंग तो बहुत आसान है, फाइटिंग सीम्स नॉर्मल। तो इस तरीके से करके आप अलग अलग पॉइंट्स बना देंगे। समझ में आ गई बात। मेन बात आपको क्या रखनी है, व्हेन यू मेक नोट्स, तो जब आप नोट बनाएंगे तो सबसे पहले ये हेडिंग दे देंगे, एंड इट शुड बी इन कंप्लीट लेटर्स, कंप्लीट वर्ड्स। इसके वर्ड्स और लेटर्स क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। जैसे एडवांटेजेस पूरा लिखा, डिसएडवांटेजेस पूरा लिखा, और वॉचिंग टेलीविजन। फिर बेनिफिट्स, पहला पॉइंट हेडिंग जो बनाएंगे वो भी अच्छे से लिखा होना चाहिए, मीन्स फुल कंप्लीट वर्ड होना चाहिए। देन आफ्टर यू कैन यूज एब्रिविएशंस। अब इसके बाद अगला प्रश्न बोलता है मेक अ समरी ऑफ द अबव पैसेज। अबव पैसेज का आपको क्या बनाना है, समरी बनाना है 80 वर्ड्स में। तो समरी पहले से ही मैंने आपके लिए लिख दिया है। समरी में देखिए क्या है, अगेन यू विल राइट समरी, समरी लिखेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ वाचिंग टेलीविजन, और फिर लिखेंगे, मान लीजिए 5 पैरा का था और हर पैरा में 6 लाइनें थी, तो आप इसको कितने में निपटा देंगे, 5 to 6 लाइन्स में आपकी पूरी समरी समाप्त होनी चाहिए। देखिए हमने सारे पैरे भी पढ़े थे, अब देखिए मैं समरी कैसे मैंने लिखा है। Watching television increases knowledge of the outside world, like science, medicine, and different arts. It also helps old people patients to recreate. It assists in informal language practice, improving our vocabulary and practicing listening. उसके बाद क्या है, टेलीविजन का डिसएडवांटेज जो मैंने बताया था वो ले रहे हैं, और देयर इज डिफरेंस बिटवीन रियल लाइफ एंड रियल लाइफ। पीपल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और दे एक्सपेक्ट देयर लाइफ एज रियल लाइफ एज दे वॉच इन टेलीविजन। इस तरीके से करके लिख लीजिए, एंड that's why due to that people remain depressed most of the time, and typically actors do television's normal television shows violence which seems which जो दिखता है, मतलब it seems that violence and murder is very normal in our life। तो इस प्रकार से ये बच्चों को खराब भी करती है। तो इस तरीके से आप करके बना लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए। वीडियो होगी है लंबी, फिर भी इट वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव। एक एक चीज को समझिए। वीडियो नंबर 1 देखिए, वीडियो नंबर 2 देखिए। यू विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम व्हाइल मेकिंग नोट्स। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।